Hello everyone, welcome back. I hope all are fit and fine. I am Mrs. Reena Dalal and we are doing our chapter 3 of geography. The name of this chapter is Our Changing Earth. What is the name of chapter? The name of chapter is Our Changing Earth. In previous lecture, I told you about two things. And which were two things? I told you about lithospheric plates as well as I told you about volcano. And today we will discuss one more thing, that is earthquake. We will discuss today about earthquake. Sometimes we feel that the land or the ground, it starts shaking like this. It starts shaking. जैसे ही क्या होता है, जो हमारी प्लेट्स है वहाँ पर जब मूवमेंट होती है उसकी वजह से हमारी जो क्रस्ट है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो लैंड है, जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वैसे शेकिंग करना शुरू कर देती है. एंड वी ऑल आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. So our houses also starts shaking. Why? Because they are built up on the surface of the earth. So obviously they will move. But what is the name of this movement? I am saying that our earth is shaking like this. What is the movement of this type of thing? What is the name of this movement? This movement is called earthquake. If I say that define earthquake, then how can we define earthquake? We can say that due to some disturbance deep inside the earth, our earth, or we can say the surface of the earth starts trembling or starts shaking, or it vibrates. These vibrations are called earthquake. Listen once again, how can we define earthquake? We can say that due to some internal disturbance in the earth, the surface of the earth vibrates and these vibrations are called earthquake. I hope the definition of the earthquake is clear to you. And I told you about two types of forces. Which forces? I told you about exogenic forces. Exogenic forces, and I told you about endogenic forces. Endogenic forces. What I told you, what are exogenic forces? We can say that the forces that work on the surface of the earth, they are called exogenic forces. And endogenic forces, we can say that the forces that act in the interior of the earth, they are called endogenic forces. Where endogenic forces work in the interior, where in the interior of the earth, and where exogenic forces work on the surface of the earth, on the surface of the earth. Now endogenic forces produce two types of movements. और वो movements कौन कौन सी हैं? First is sudden movement. Second we can say diastrophic. Sudden movement, here we can say that volcano and the earthquake. These are caused by the sudden movements. And in diastrophic, we can say these movements are very slow. These are the sudden movements. Diastrophic means these are the slow movement. For example, here we can say that formation of the mountains. For example, formation of mountains में हम example क्या दे सकते हैं? हिमालयास. जो हिमालय हमारे माउंटेन्स है वो किससे बने हैं, किस प्रोसेस से बने हैं? जो हमारा डायस्ट्रोफिक प्रोसेस होता है, जो स्लो मूवमेंट होती है, उनकी हेल्प से हमारा जो ये हिमालय है ये बना हुआ है. बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल है हिमालयास. अगर हम वोल्केनो की बात करें, वोल्केनो क्या है? ये सडन मूवमेंट होती है. और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो इटली के अंदर स्ट्रम्बोली एक ऐसा वोल्केनो है. इसके लिए क्या चीज़ फेमस है? ऐसा माना जाता है कि ये जो वोल्केनो है इटली के अंदर 1934 में ये एक्टिव हुआ था और ये प्रेजेंट तक एक्टिव ही है.
मीन्स इसकी जो जैसे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो है, मीन्स धीरे धीरे यहाँ पर जो लावा है वो इसमें से निकल रहा है। ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में, मैंने आपको बताया है ये इटली के अंदर। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो रिसेंटली क्या हुआ है, हरियाणा के अंदर एक जो है अर्थक्वेक आया है अभी मई 2020 के अंदर, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बताया गया है, 4.5। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और ये कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, ये अभी हम डीपली स्टडी करेंगे अर्थक्वेक के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, एंडोजेनिक फोर्सेस। तो हमारे जो अर्थक्वेक है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ कॉज्ड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस एंड इट इज़ अ सडन मूवमेंट एंड इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है। आई रिपीट ऑल 3 थिंग्स। अर्थक्वेक इज क्रिएटेड बाय एंडोजेनिक फोर्सेस, अर्थक्वेक इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज़ अ सडन मूवमेंट। Next thing, why earthquake occur? Why earthquake occur? Or what are the reasons behind these earthquakes? और हमारे जो अर्थ है या जो लैंड है, जो ग्राउंड है, वो ऐसे शेक करना क्यों शुरू कर देती है, ये अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीन्स रीजन्स क्या है इसके लिए। आई टोल्ड यू अबाउट द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। व्हाट आई टोल्ड यू, lithospheric plates. What are lithospheric plates? We can say that lithospheric plates, these are the regions. These are the regions of the earth crust and upper mantle. Earth crust and upper mantle, and these regions are fractured. These regions are fractured. Why? Due to the motion of the molten magma. Due to motion of molten magma. एक बार फिर से सुनोगे। What are lithospheric plates? We can say that the lithospheric plates are the regions of the earth crust and upper mantle, and these regions are fractured into many plates. These regions are fractured into many plates. Why? Due to the motion of the molten magma. I hope this is clear to you. And lithospheric plates are also called tectonic plates. These are also called tectonic plates. These lithospheric plates और tectonic plates ये क्या करती हैं? They carry continents and oceans. हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं वो सभी कौन कैरी करता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ वी विल डिस्कस how earthquake occur. When these lithospheric plates move, I have also told you about the lithospheric plates and their movement. When these lithospheric plates move, lithospheric plates move, sometimes they strike to each other और कोलाइड टू ईच अदर. अब जैसे ही कोलाइड होंगी इससे क्या है, वाइब्रेशन होंगी. फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, ये देखो इधर, सपोज ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है. दीज आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड दे आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर. एक दूसरे के साइड ऐसे क्या है, बढ़ती जा रही हैं. तो ये एकदम से ऐसे ही स्ट्राइक करते हैं, एकदम से एक दूसरे से टकराती है, और जैसे ही स्ट्राइक करती है, एक दूसरे से कोलाइड करती है, तो यहाँ पर क्या है, इनसे क्या होगा, वाइब्रेशन निकलेंगी, और उन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से हमारी जो अर्थ है वो ऐसे शेक करना शुरू कर देती है, ऐसे हिलना शुरू कर देती है. सो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द अर्थक्वेक? वी कैन से इन शॉर्ट दैट अर्थक्वेक ऑकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. The next topic related to earthquake is focus and epicenter. Focus and epicenter. What is focus and what is epicenter? We can say focus. It is a place from where movement starts. It is the place in the crust
from where movement starts. And what is epicenter? We can say that it is a place above the focus. It is a place above the focus जहाँ पर ग्रेटेस्ट डैमेज पाया जाता है जब कोई भी अर्थक्वेक आता है. इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? फोकस एंड एपिसेंटर. सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन. हेयर द पिक्चर ऑफ फोकस एंड एपिसेंटर इज गिवन. अब इस पिक्चर में कैसे क्या होता है वो अभी आपको हम बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी क्रस्ट है. ये क्रस्ट हमारी कहाँ टिकी हुई है? जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसके ऊपर हमारी क्रस्ट है. मान लो यहाँ पर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ऐसे, और आपस में ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं, स्ट्रक करते हैं एक दूसरे से. स्ट्रक करते ही क्या है, मान लो इस प्लेस पर यहाँ पर जो मोमेंट्स हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स के स्ट्रक करने से, कोलाइड करने से, टकराने से वाइब्रेशंस यहाँ से स्टार्ट होती है. तो ये जो प्लेस है इट इज़ कॉल्ड फोकस. इट इज़ कॉल्ड focus. Why focus? Because I told you that the focus is the place in the crust from where the earthquake starts, okay, and from where the earthquake occur. और यहीं से जो सिस्मिक एनर्जी है वो हमारी यहाँ से क्रिएट होती है. अब जैसे ही कोलाइड किया, यहाँ से क्या है, यहाँ से तो जो वाइब्रेशन है उन्होंने क्या है अपनी मूवमेंट जो है स्टार्ट की. अब यहाँ ये जो है फोकस, इसके ठीक ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हम बात करें, ऑन द सरफेस, यहाँ ये जो प्लेस है इट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर. वी कैन से ऑन द सरफेस और अबव द फोकस. लिसन वंस अगेन, व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर अ प्लेस कहाँ पर है ये? ऑन द सरफेस एंड अबव द फोकस. जो फोकस है बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ एपिसेंटर होता है. ओके, इट इज़ एपिसेंटर. अब जैसे ही यहाँ वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन होते ही क्या है, यहाँ पर वाइब्रेशन दे कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ. ऐसे मूव करना शुरू कर देती, सभी डायरेक्शंस में जो वाइब्रेशन है वो जाती हैं. लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ पर? जो एपिसेंटर मैंने आपको बताया, एपिसेंटर, यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट डैमेज देखने को मिलता है. ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ पर मिलेगा हमें? ये एपिसेंटर. क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये वाइब्रेशन अपनी मूवमेंट स्टार्ट करती है तो ये जैसे ही यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो भी फोर्स है वो ज़्यादा होती है. लेकिन जैसे ही यहाँ से अदर प्लेसेस पर दूर जाएंगी, ऐसे दूर जाएंगी, इधर देखिए जैसे कि ये सेंटर है, फिर ये ऐसे यूँ सभी डायरेक्शन में फैलना शुरू कर देती हैं. तो पहले जहाँ ये फोकस के पास, एपिसेंटर के पास पहुँचती है, वहाँ जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पर ग्रेटेस्ट जो है डैमेज ये कर सकती हैं. जो अदर या जो दूर है एरिया, वहाँ पर जैसे जैसे ये जाएंगी इन वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी, और दूर के जो एरियाज़ है वहाँ पर जो लॉस है वो बिल्कुल ही कम होगा. आई होप बोथ टॉपिक्स फोकस एंड एपिसेंटर आर क्लियर टू यू. आई रिपीट, focus. What is focus? We can say that focus it is the place in the crust from where earthquake occur. Epicenter, we can say it is the place on the surface and above the focus. It is called epicenter. अब जो स्क्रीन पर आपकी पिक्चर है उसके अंदर आपको देखने में ये थोड़ा अलग लग रहा होगा, उसमें क्या है और कैसे दिखाया गया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. स्क्रीन के अंदर क्या है, यहाँ पर दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऐसे ली गई हैं इस शेप में, इसलिए आपको ये पिक्चर थोड़ी सी दिखने में अलग लग रही है. ऐसे क्या है, ये ली गई हैं. अब ये क्या है, ये सीधे प्लेट्स है, इसमें क्रस्ट नहीं दिखाई गई है, सीधे प्लेट्स है. जैसे ये हो गई कंप्लीट, एक प्लेट यहाँ से हो गई. जो दूसरी प्लेट है वो इसमें क्या है, ऐसे हाफ करके दिखाई गई है. ये अपर एरिया है, ये भी अपर है. ये नीचे जैसे हम डेप्थ कहते हैं या जिसको विड्थ कह सकते हैं, वो है ये, इसकी मोटाई है ये. अब इसके अंदर दिखाया क्या गया है, अब एक स्लाइड इसमें से निकाल ली गई है ताकि जब ये स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे से, ये देखिए इधर से एक प्लेट ऐसे आ रही है, इधर से एक प्लेट यूँ जा रही है. जब ये दोनों आपस में टकराती है तो बीच में क्या है, वाइब्रेशन स्टार्ट है, वो हमें दिखेगा कैसे, इसलिए एक पार्ट यहाँ से निकाल दिया गया है. इसलिए यहाँ पर जैसे ये यूँ स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पर, यहाँ जैसे स्ट्राइक किया इन्होंने, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये होगा फोकस, जो कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक इसके ऊपर क्या दिखाया गया है, एपिसेंटर. बाकी सभी के नेम्स आपके पिक्चर में दिखाए गए हैं. तो इस वे में जो फोकस और जो एपिसेंटर है दे आर रिलेटेड टू द अर्थक्वेक. नाउ
How can we know that how dangerous the earthquake was or what was the magnitude of the earthquake? कोई भी earthquake आया, कैसे पता चलता है कि वो कितना डेंजरस था, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, कितना हाई था या कम था, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम मेज़र करने की बात करें, आपके माइंड में मेज़र करने की जब भी बात आती है, जो आप क्लासरूम के अंदर जो स्केल यूज़ करते हो ज़रूर वहीं आपके माइंड में आएगा, लेकिन ये जो ऐसा स्केल जो आप क्लास के अंदर यूज़ करते हो, इस स्केल से हम जो अर्थक्वेक है उसको मेजर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे कर सकते हैं? व्हाट वी नीड अ मशीन। If we want to measure the earthquake, then we need a machine. And what is the name of this machine? The name of this machine is seismograph. What is the name of this machine? Seismograph. Seismograph. What is seismograph? Seismograph, we can say that it is a machine that is used to measure an earthquake. ओके अब मान लो ये हमारे पास मशीन भी है और ये अर्थक्वेक को मेज़र करेगी, लेकिन कैसे करेगी? यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सिस्मोग्राफ ऑन योर स्क्रीन पर गिवन है, वहाँ आप पिक्चर देखो। लेकिन ये जो सिस्मोग्राफ मशीन है इसका यूज़ कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा या कैसे बताएगी ये मशीन कि ये क्या है, कि जो अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना या वो कितना जो है डेंजरस रहा? इसके लिए क्या होता है, ये जो सिस्मोग्राफ है इसके अंदर एक रिचर स्केल जो है फिट किया जाता है, रिचर स्केल। इस रिचर स्केल से, जिसको हम रेटिंग स्केल भी कह सकते हैं, इस रिचर स्केल के ऊपर कुछ वैल्यू लिखी होती है और ये जो वैल्यू होती है 0 to 10 के बीच में होती है। ओके, और इसी से हम मेज़र करते हैं। जो भी रिचर स्केल है उसके अंदर मान लो कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है, जैसे कि 2.0 और लेस। अगर कोई भी अर्थक्वेक आया और उसका मैग्नीट्यूड मीन्स रिचर स्केल पर उसका नंबर क्या है 2.0 या इससे भी कम है, तो ये क्या होगा? फेल्ट अ लिटल मीन्स क्या है, हमें बहुत ही कम महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में बता रही हूँ, हम अपना जो है यहाँ पर जो पढ़ रहे अर्थक्वेक के बारे में, तो इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसे बहुत सारे अर्थक्वेक अगर आके भी चले जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है, हम बहुत ही कम जो है इन चीज़ों को फील कर पाते और कह सकते हैं बहुत ही हल्के होती हैं अर्थक्वेक, तो इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर रेटिंग स्केल पर या रिचर स्केल पर ये मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, अगर 5.0 हो जाता है नंबर बढ़ के या मैग्नीट्यूड बढ़ के, तो इससे क्या होगा? अगर इस टाइप का आता है थिंग्स फेल डाउन। जो भी चीज़ें हैं, मान लो कोई लेक्चर स्टैंड या कोई टेबल है, आपने उसके ऊपर कोई भी पोट वगैरह रखा है या कुछ और सामान रखा है, कोई वॉल क्लॉक उसके ऊपर रखी है, तो वो सामान क्या है, नीचे गिर सकता है। इतना जो नुकसान है वो 5.0 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे होता है, मीन्स इससे बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, अभी पीछे जैसे मैं बता रही थी आपको, हरियाणा के अंदर जो भी अभी मई 2020 के अंदर हरियाणा के अंदर एक यहाँ पर अर्थक्वेक आया और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4.5 था रिचर स्केल पर। इट मीन्स जो 5.0 है इससे नीचे था। इसका क्या इफेक्ट था? सिर्फ जो थिंग्स है वो गिर सकती थी, इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं था। और हरियाणा में जो ये अर्थक्वेक आया, इसका जो एपी सेंटर है वो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद उसका एपी सेंटर माना गया। अब एपी सेंटर क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, कितना था? रिचर स्केल पर 4.5 इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था। अब जैसे कि अगर 6 पे आ जाए, इसका क्या है, मैग्नीट्यूड बढ़ के 6.0 हो गया, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इसको मानते हैं और इससे जो है नुकसान हो सकता है। अगर इसका और ज़्यादा बढ़ जाए, मैग्नीट्यूड अगर मान लो 7 तक पहुंच जाए, तो इसको हम मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेजर अर्थक्वेक। मेजर अर्थक्वेक। यहाँ 6 पे भी ग्रेट डैमेज हो सकता है या ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2001 के अंदर
हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पर जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर 6.9 इस मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसने हिट किया गुजरात को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो केस स्टडी है रिलेटेड टू गुजरात, ये अभी आपके जो हम टॉपिक क्लियर करें हैं उसमें आगे डिस्कस करेंगे इसको फुल कि कैसे क्या हुआ और कितना वहाँ पर नुकसान हुआ, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम रेटिंग स्केल पढ़ रहे हैं। मान लो ये जो मैग्नीट्यूड है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 8.0 पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर डेथ हो सकती है और डेथ के साथ साथ यहाँ पर मेजर डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। मेजर डिस्ट्रक्शन, डेथ मीन्स जैसे कि अगर वहाँ पर पर्सन्स वगैरह रह रहे हैं तो उनकी डेथ हो सकती है, इतना नुकसान इसका होता है। और साथ में मेजर डिस्ट्रक्शन, हमें जो बिल्डिंग्स है वो तहस नहस हो सकती है, कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैंने बताया रेटिंग स्केल 10 तक होती है, 0 to 10 तक होती है। अगर मैग्नीट्यूड और ज़्यादा बढ़ गया 9.0 या इससे भी ज़्यादा हो गया, वैसे तो इतने मैग्नीट्यूड के जो भी अर्थक्वेक हैं वो रेयर होते हैं, बहुत ही कम आते हैं, रेयर होते हैं। लेकिन अगर कभी इतने मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक अगर कभी वो ऑकर हुए तो इससे क्या होगा, कॉज अनबिलीवेबल कंस्ट्रक्शन, दे कैन कॉज अनबिलीवेबल डिस्ट्रक्शन, कॉज अनबिलीवेबल डिस्ट्रक्शन। हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो 9.0 पर अगर मैग्नीट्यूड पहुंच जाता है अर्थक्वेक का, तो इससे हम यूँ कह सकते हैं एक तरह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतना जो लॉस यहाँ पर इस अर्थक्वेक के थ्रू हो सकता है। We know that earthquake is a sudden moment. As I told you, earthquake is a sudden moment and it is caused by the endogenic forces. तो ये sudden moment है, means we can't predict it. We can't predict it. लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं वो कुछ प्रिडिक्शन मेथड्स यूज़ कर लेते हैं। क्या करते हैं वो? प्रिडिक्शन मेथड्स। प्रिडिक्शन मेथड क्या होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, कुछ ऐसा जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे करते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। जो भी पीपल है कॉमनली कुछ मेथड्स हैं, प्रिडिक्शन मेथड्स, जो उनके थ्रू क्या है एज्यूम किए जाते हैं और उनसे वो पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक अभी आने वाला है। तो ऐसे कौन से प्रिडिक्शन मेथड्स हो सकते हैं अर्थक्वेक के लिए, जो कई बार जो ये आदिवासी होते हैं या जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू मोस्टली ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। वो क्या करते हैं? स्टडी एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। अब जो एनिमल्स जो बिहेवियर करते हैं इस टाइम पे उसको स्टडी करते हैं और उससे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब वो कौन कौन से एनिमल्स के बिहेवियर है? फर्स्ट इज फिश, फिश गेट एजिटेटेड। सबसे पहले वो ये देखते हैं कि अगर जो भी वाटर बॉडीज़ है उनके अंदर जो फिश है अगर वो एजिटेटेड हो गई है, एजिटेटेड मीन्स अगर वो नर्वस हो गई है, तो वो पता लगा लेते हैं कि इससे क्या है अर्थक्वेक आने वाला है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे उनको पता चलता है? मान लो हमारी क्या है, ये क्रस्ट है, ओके। यहाँ पर हमारे मैंने बताया जो क्रस्ट है इसी के ऊपर ओशंस भी हैं और सारे क्या है कॉन्टिनेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पार्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है। इसकी डेप्थ मैंने आपको पहले कितनी बताई? ओनली 5 किलोमीटर और यहाँ पर क्या बताया? 35 किलोमीटर। तो हम बात करें फिश की जो कि वाटर बॉडीज़ के अंदर होती हैं। मान लो यहाँ पर ये क्या है, लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं इन्होंने एक दूसरे से स्ट्रक किया, ये कोलाइड किया यहाँ पर क्लाइड करते ही यहाँ से वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस होंगी। वो वाइब्रेशन क्या है सभी डायरेक्शंस में फैलना स्टार्ट कर देंगी। और यहाँ तो क्या है सॉलिड, यहाँ ये क्या है लिक्विड। इस लिक्विड के अंदर जो वाटर लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो पहले सेंस की जा सकती हैं बजाय कि सॉलिड के, ओके। तो यहाँ पर जैसे ये वाइब्रेशन आएंगे तो पानी क्या है हिलना स्टार्ट हो जाएगा। और पानी जब तेज़ी से हिलेगा तो जो फिश हैं वो बिल्कुल नर्वस हो जाती है। उनको लगता है कि ऐसा क्या हुआ जो पानी इतनी तेज़ी से जो है हिल रहा है, और वो एजिटेटेड हो जाती है, नर्वस हो जाती है, यहाँ से वहाँ वो भागने लग जाती है। ऐसे जो फिश हैं वो एजिटेटेड हो जाती है, वो नर्वस हो जाती हैं, एक्साइटेड हो जाती है। और ये बिहेवियर देख के
जो पर्सन्स हैं जैसे कि आदिवासी या ट्राइबल ग्रुप्स है वो पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक अभी आने वाला है, इसके पीछे ये लॉजिक है। जो सेकंड चीज़ है, स्नेक्स कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकंड कौन सा एनिमल है? स्नेक्स। अब ये स्नेक्स कैसे बिहेव करते हैं? मान लो ये हमारी क्रस्ट है, ओके, क्रस्ट के अंदर होल बने हुए बहुत सारे, और उन होल्स के अंदर जो स्नेक्स है वो रहते हैं। अब यहाँ होल्स के अंदर रहते हैं, मान लो नीचे लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है उनकी मूवमेंट होती है, उनसे क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहाँ पर भी फील की जाएंगी। तो एक तो क्या है, हम यहाँ रह रहे हैं ऊपर सरफेस के ऊपर, लेकिन जो स्नेक है वो नीचे क्रस्ट के अंदर होल बना के, बिल बना के वहाँ उसके अंदर बैठा हुआ है। तो वो हमसे एक तो नीचे है, और यहाँ नीचे से जब वाइब्रेशन आ रही है तो ये क्या है, हमसे पहले उन चीज़ों को सेंस कर लेगा, समझ जाएगा कि जो ये क्रस्ट है या जो ज़मीन है, लैंड है, वो हिल रही है, इट मीन्स कुछ होने वाला है। इसलिए क्या है, यहाँ से जो स्नेक निकल के और सरफेस पर आ जाएगा। ऐसे ही जहाँ जहाँ ऐसे होल होते हैं उन सब में से यू सांप जो है निकल के और वो सरफेस पर आ जाते हैं। एक तो ये लॉजिक है। सेकंड थिंग, आपने सुना होगा कि जो ये स्नेक्स होते हैं इनके ईयर्स नहीं होते, हमारे ईयर्स होते हैं, वी कैन हियर, हमें जो है सुनाई देता है, लेकिन स्नेक्स के क्या है, ईयर्स नहीं होते। तो उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है ज़मीन हिल रही है? ईयर नहीं होते, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसकी जो बॉडी है वो चीज़ों को फील करती है। मान लो कोई स्नेक है, वो सरफेस के ऊपर आया बैठा हुआ है, और हम कहीं दूर से भी ऐसे ही चल के जा रहे हैं, तो हमारे पैरों से थोड़ी बहुत या जो लिटिल वाइब्रेशन है वो ज़मीन के अंदर होती है, और सांप के ईयर नहीं है फिर भी उसको पता चल जाता है क्या है, कोई आ रहा है, जो ज़मीन है हिल रही है, उसके अंदर वाइब्रेशन है, इस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और जाके कहीं पर भी वो छुप सकता है। इट मीन्स मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जो स्नेक्स होते हैं वो हमसे पहले फील कर लेते हैं। एक तो वो हमसे नीचे रहते हैं, यहाँ नीचे से वाइब्रेशन आएंगी, उन तक पहले पहुँचेंगी, इसलिए दूसरा उनके अंदर इन वाइब्रेशन को जो है सेंस करने की, फील करने की जो पावर है वो हमसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनको पता चल जाता है। इसलिए सभी के सभी जो स्नेक्स है वो क्या करते हैं, जो होल है उससे बाहर निकल आते हैं। और जो ये आदिवासी होती है, जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि एकदम से अगर इतने सारे स्नेक्स अपने होल से, बिल से बाहर निकला है, इट मीन्स क्या है, अभी अर्थक्वेक आने वाला है, और पहले ही वो क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। आई होप दिस प्रिडिक्शन मेथड्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स, हमें ये पता है कि जो अर्थक्वेक है इट इज़ अ सडन मोमेंट एंड वी कांट प्रिडिक्ट इट। तो फिर हम कैसे प्रिपेयर इसके लिए हो सकते हैं, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन द सेफ्टी मेजर्स। हमें पता है अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, बट वी कैन मिनिमाइज द लॉस। How we can minimize the loss? If we are prepared, then we can minimize the loss. अगर जो सेफ्टी मेजर्स है, if we have knowledge about the safety measures, then we can minimize the loss of the earthquake. अब ये सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हम तीन चीज़ों की बात करते हैं। फर्स्ट इज where to take shelter. Where to take shelter, हमें शेल्टर कहाँ लेनी चाहिए अगर अर्थक्वेक आ जाता है। सेकेंड थिंग इज स्टे अवे। स्टे अवे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड थिंग है यहाँ पर स्प्रेड अवेयरनेस। स्प्रेड अवेयरनेस, इसकी बात करेंगे हम, एक एक करके अब इनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज वेयर टू टेक शेल्टर। अगर क्या है, जैसे मैंने बताया एकदम से आ सकता है, सडन मोमेंट अर्थक्वेक एकदम से अगर आ भी जाता है, तो उस टाइम पे जहाँ कहीं भी हैं हम, तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर इनसाइड आवर हाउस, तो हमें कहाँ शेल्टर लेनी चाहिए, अंडर घर के अंदर क्या क्या हो सकता है, किचन काउंटर। किचन काउंटर के नीचे हम जा सकते हैं क्योंकि हम कह सकते हैं वो हार्ड सरफेस है, इस वजह से। नेक्स्ट इज अगर कोई टेबल है वहाँ पर उसके नीचे हम शेल्टर ले सकते हैं। थर्ड, अगर कोई डेस्क है वहाँ पर भी हम जा सकते हैं, उसके नीचे जो है बैठ सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इनसाइड कॉर्नर, इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल।
इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल। ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या है, ये बहुत ही हार्ड होती है। अगर हम इनके नीचे जाएंगे, ऊपर से कोई भी चीज़ जैसे फैन है या कोई पिक्चर फ्रेम अगर वो गिर रहा है तो हमारे सिर पर नहीं लगेगा, हमें ज़्यादा हार्म नहीं होगा और हम जिंदा बच जाएंगे अगर ये सेफ्टी मेजर्स हम क्या करते हैं, इनको अडोप्ट करते हैं। इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल, जो भी रूम के अंदर या घर के अंदर जो भी कोने होते हैं हमें वहाँ जाकर खड़े हो जाना चाहिए, ताकि अगर रूफ जो छत है वहाँ से कोई सामान गिर रहा है जैसे फैन वगैरह या कुछ और है तो वो हम पर ना गिरे और हम उस कोने में सेफ बने रहें और हमारी जान बच जाए। नेक्स्ट इज स्टे अवे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए और वो कौन कौन सी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फायर प्लेसेस, फायर प्लेसेस इनसे दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनीज, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगर कोई मिरर रखा है, कोई शीशा रखा है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी विंडो है आसपास, उससे भी हमें क्या है, दूर रहना चाहिए। अगर पिक्चर फ्रेम्स लगे हैं घर के अंदर, पिक्चर फ्रेम्स जो बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं जो काफ़ी भारी होते हैं, अगर वो वॉल पर लगे हैं और अर्थक्वेक ऐसे आया, हमारी जो अर्थ ऐसे मूव कर रही है तो वो हमारे सिर पर भी गिर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए ताकि हमारी जो जान है वो बच जाए। तो इन चीज़ों से हमें, अगर अर्थक्वेक आता है तो उनसे दूर रहना है। ये आपकी प्रैक्टिकल जो लाइफ है वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम आएंगे। नेक्स्ट थिंग मैंने क्या बताया, स्प्रेड अवेयरनेस। हम सभी को जो अवेयरनेस उसको स्प्रेड करना चाहिए अमंग आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अगर अवेयरनेस है तो यही सबसे बड़ी चीज़ है, हम किसी भी डिजास्टर का क्या है, सामना कर सकते हैं। अर्थक्वेक इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिजास्टर, वाई? बिकॉज इट कॉजेज ग्रेट लॉस, that's why it is called also a disaster. But we should face this type of disaster confidently and we should spread awareness among our friends and among our family members. ये कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए अगर कभी हमें ऐसे डिजास्टर का सामना करना पड़े तो हम उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट थिंग, आपकी बुक के अंदर रिलेटेड टू गुजरात एक केस स्टडी गिवन है। केस स्टडी, इंडिया में जो गुजरात स्टेट है वहाँ पर अर्थक्वेक ने हिट किया था, उसकी केस स्टडी गिवन है। वहाँ पर क्या हुआ, कैसे अर्थक्वेक आया, कितना मैग्नीट्यूड था, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, ये सभी यहाँ पर गिवन है। हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, गुजरात। और गुजरात कहाँ पर है, हमारी ही कंट्री इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पर एक मैसिव अर्थक्वेक आता है, मैसिव अर्थक्वेक, बहुत ही जो है भयानक अर्थक्वेक आता है। अब ये कब आया ये 26 जैन 2001, 26 जैन को। और क्या होता है, वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे। हाँ, उसी दिन क्या है 26 जैन को, और ईयर कौन सा रहेगा, 2001, जो हमारी 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट ईयर था उसी के अंदर। और किस दिन, 26 जैन, जो जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन क्या है, गुजरात के अंदर एक मैसिव अर्थक्वेक आता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो रिचर स्केल पर जो मैग्नीट्यूड है वो नोट डाउन किया गया 6.9। और मैंने बताया था ये क्या है, ग्रेट होते हैं जो 6 से अब होते, और इनसे जो है मेजर डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। ऐसा ही गुजरात के अंदर हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, केस स्टडी हमें क्या बताती है, 971 स्टूडेंट्स प्लस 31 टीचर्स, ये सभी क्या है, ये स्कूल बिल्डिंग के अंदर थे उस टाइम पे, स्कूल बिल्डिंग। और स्कूल बिल्डिंग जैसे ही अर्थक्वेक आया वो कोलैप्स हो गई, वो बिल्डिंग क्या है, डैमेज हो गई, वो बिल्डिंग गिर गई और उसके गिरने से इन सभी की डेथ हो गई। इन सभी ने अपना क्या किया, दे लॉस्ट देयर लाइफ्स,
जो सबसे बुरा नुकसान रहा वो स्कूलों पर ही रहा। बहुत सारी और भी डेथ्स वहाँ पर जो है नोट की गई। इसके साथ साथ गुजरात के अंदर जो भी फ़ोन लाइन्स थी उस टाइम पे, फ़ोन लाइन्स या जो भी वाटर पाइपलाइंस थी, वाटर पाइपलाइंस, वो सभी अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गई। इट मीन्स वहाँ के जो पर्सन थे जो बच गए और उनके लिए जो असेंशियल चीज़ें थी वो सारी चीज़ें भी डैमेज हो गई। तो वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ की वजह से फेस करनी पड़ी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।